लिया करिए। सर वीडियो ही नहीं देखा। तो बहुत अच्छा बेटे, फिर गॉड ब्लेस यू। सर पर टाइम नहीं मिला। नहीं मिलता है टाइम, रात को टाइम नहीं मिला ऐसा हो ही नहीं सकता, दिन में नहीं मिलता वो समझ आता है। अरे सर मेरी नानी की तबीयत मतलब वो वेंटिलेटर पे, तो हम मेरे नानी के घर थे इसलिए फिर नहीं मिला टाइम। ओ चल, आज देखो कंप्लीट करो, ठीक है, फाइन। सर एंड व्हाट अबाउट अदर्स? या सर क्वेश्चन सेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस वाला है, एक बार आप करके बताओ ना, नहीं हो रहा है शायद। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ सर। ठीक है चलो वो कर देते हैं, अच्छा भी सबके लिए वर्कआउट भी हो जाएगा। Yeah, as Harshit said, question number 6 is an improper fraction where you cannot apply directly partial fraction technique. You need to convert them into a proper fraction. You know, question number 6 I am taking. Is it visible? Screen is visible? Yes sir. That's good. So 1 minus x square upon what we have, x into 1 minus 2x dx. So basically it's an improper fraction. So we need to convert this improper to proper fraction first before applying the partial fraction technique. For that you need to go for long division method. So simply first multiply the denominator to get a polynomial and then do the rough calculation here. It will be like ऑर्डर में लिख देता हूँ, -2x² plus x is the denominator and the numerator is like -x² plus 1. Is it true? Yes sir. चलिए let's start with that. अब शुरू हो जाओ, लॉन्ग डिवीजन मेथड आप ही बताओ, हाउ टू गेट -x²। पहले 2 से मल्टीप्लाई। 2 से करोगे तो -4 हो जाएगा ना। सॉरी आई थिंक इट्स 1/2। 2 हाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब -x² आएगा। So then the next factor would be x into 1/2, that is x/2. Then sign will interchange. These two get cancelled. माइनस Remainder x is -x/2 plus 1. This is a remainder. This is a quotient. This is a divisor. And how to express quotient plus remainder upon divisor? This is to express an improper fraction. Correct. Now just try to express this first. 1 minus x² upon x into 1 minus 2x dx is equal to, quotient is half dx plus, then remainder is what, -x/2 plus 1, or by taking an LCM also you can speak here. यहीं से LCM ले लो तो -x plus 2/2. So you can keep 1/2 as a constant and -x plus 2 will go in numerator and denominator would be this only जिससे हमने divide किया. So you can keep the denominator again in the factorized form because we required this. आप चाहे तो ऐसे लिख के वापस next step में change कर सकते हो, otherwise you can write it as it is. Now this is converted into a proper fraction where you can apply partial fraction technique. So this will, ये वाला पार्ट तो हमेशा सॉल्व हो जाएगा, 1/2 हाफ बाहर हो गया. So 1 का इंटीग्रेशन x, then you can consider this as I1 because the total question is always start with I. जितने भी सब पार्ट्स बनते जाएंगे आप अलग से सॉल्व करना चाहेंगे, लेट इट बी इक्वेशन नंबर I1 अलग से ले लो, I1 सॉल्व करो, then add to the result. That's it. So I1 को सॉल्व करना है तो I1 के लिए लीजिए -x plus 2 by x into 1 minus 2x, and both are linear in nature. Hence, we can split this fraction into two parts, a by x plus b by
1 minus 2x over. Then solve for a and b by using a general LCM method and all, and then go for and. So instead of solving this part, we will solve these two parts. तो solve हो जाएगा यहाँ से. हाँ सर. चलिए, good. Next, any more doubt first? Anyone, those who have practiced partial fractions? नहीं किया हो तो कर देना बटे. हाँ, मैं आज पूरी पार्शियल फ्रैक्शन का जो क्लास है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ. यहाँ मैं कुछ सिलेक्टेड सम्स ले रहा हूँ जहाँ ना थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्म में होते हैं. I'm taking the next question. Question number I'm taking 15. Just for reference, I'm taking question number 15. You can see the question is like 1 upon x to the power of 4 minus 1 dx. So here, if you closely observe, this is factorizable into some linear and quadratic factors by using the identity a square minus b square can written as what? A plus b into a minus b. So by using this identity, you can factorize this further like x square plus 1 into x square minus 1 dx. And still, if you observe again, this is going to factorize further. So ultimately, question is now converted into a complete possible factors x square plus 1, x plus 1 into x minus 1. So you can see here, this is a quadratic factor, this is a linear factor, this is a linear factor. And you can see their powers are 1, 1, 1 means the total fraction is going to split into 3 fractions. The first fraction, right? Since it is a quadratic, we need to take linear expression in the numerator. Ax plus b upon x square plus 1 plus c upon linear x plus 1. If it is a linear, constants will be introduced. If it is a quadratic, linear will be introduced. Plus d upon x minus 1. Now, simply what to do? हम देखिए मैं यहाँ से ये चीज हटा देता हूँ because when we are dealing with the partial fraction, we won't take integral symbol. Then solve for a, b, c and d as we have discussed in the previous 2 classes. जो भी मैंने वीडियो लेक्चर में बताया हूँ और इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था, LCM लेके आप सॉल्व करेंगे, you will be able to solve a, b, c, d. So instead of taking an integration over here, we'll take integration of these 2 fractions. तो ये तो सीधा log में कन्वर्ट होगा, ये भी log में कन्वर्ट होगा, और यहाँ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट लगेगा जो हमारा 7.4 एक्सरसाइज बेस्ड है. जहां भी आप ऐसे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में स्प्लिट करते हो तो यू कैन यूज दिस टेक्निक अगेन. तो 7.4 का जो भी प्रैक्टिस किया हुआ है वो इसका सब पार्ट बन गया. देख लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक का सब पार्ट बन चुका है. तो जिसने 7.4 अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो ही वो 7.5 को कंप्लीट कर पाएगा, वरना ऐसी केसेस में वो ब्रेक लगेगा. अंडरस्टूड? सो रेस्ट आई एम लिविंग ऑन यू. बाकी आप लोग करेंगे तो फिर मैं एंटरटेन करूंगा अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो. फिलहाल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ. ओके, चलेगा? हाँ सर. समझो आपका सामने बता रहा है कि यस, ठीक है, ये समझ Sir. लेता हूँ. यस सर me. लास्ट के 10 मिनट साइंस के स्टूडेंट्स को अंकुर सर के साथ में एक बार मीटिंग है, तो फिर हमको लास्ट के 10 मिनट जल्दी जाना पड़ेगा. आप चले जाओ बेटे. हाँ सर. ठीक है, बाकी सब बने रहना. देन 16, क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है,
हम देखिए what is there in the question is 1 upon x into x to the power of n plus 1 dx. ठीक है. नाउ टेक्स्ट बुक में जो हिंट दिया है और मैं जो हिंट फॉलो करूंगा वो डिफरेंट होगा. अब देखिए व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने से पहले मुझे पता है कि ये तो लीनियर है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स डिग्री. until and unless उसका डिग्री क्लियर नहीं होता I cannot apply partial fraction technique. So what I will do, I will go with for first substitution technique. अगर इस फैक्टर को मैं t लेट करूं, let x to the power of n plus 1, अगर इसको मैं t लेट करूं, substitute करूं, so you will see some changes in the question. देखिए substitution technique से ये क्वेश्चन कैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते देखिए. So when you do the derivative of this function with respect to x, it would be n into x to the power of n minus 1, right, into dx by dt equal to 1. अब यहां से आप dx की वैल्यू चेक करिए. So dx की वैल्यू क्या हो रहा देखिए dt upon n into x to the power of n minus 1. Just substitute this dx वैल्यू इन द क्वेश्चन बिकॉज जब ये तो पता ही आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में हम जब किसी भी फंक्शन को सब पार्ट को टी लेट करते हैं तो dx भी चेंज होता है साथ में. जस्ट आई एम राइटिंग दिस फंक्शन ओवर हियर. देखिए 1 अपॉन x इनटू इट इज t. नाउ dx की वैल्यू है dt अपॉन n इनटू x टू द पावर ऑफ n minus 1. So when you multiply these two factors, their powers will be added, right? And 1 by n as a constant you can keep outside. So from here you could say 1 by n is a constant. Then the question is becomes like dt upon t into, just multiply this one and add the powers and tell me what is the left one. आप पावर्स ऐड करके बताइए क्या होगा. x power n. Very good. X power n is left, but x power n can written as t minus 1 because already you started the statement like यहां से आप देखिए जहां एज्यूम किया आपने तो यहां से x पावर n को हम लिख सकते हैं t के लैंग्वेज में t minus 1. So complete question t के लैंग्वेज में आ गया. 1 by n is a constant. So dt upon t into t minus 1. Now you can see both are linear factors and their degree is also clear. Now the denominator is completely factorizable. You can go with the partial fraction technique like a by t plus b by t minus 1 and solve for a and b and apply integration. Both will convert into log formulas and you will be able to solve the question. Fine. Is it clear? Yes, sir. क्वेश्चन समझ आ गया आपको, हिंट समझ आ गया तो है ना, क्योंकि इसमें हिंट की जरूरत पड़ रही है क्योंकि इसमें डिग्री क्लियर नहीं है. जब तक डिग्री क्लियर नहीं होता यू कैन नॉट अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक. तो इसलिए हमें यहाँ पहले सब्स्टिट्यूशन टेक्निक यूज हुआ फिर लगेगा में पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड प्लस पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. तो ऐसी काफी क्वेश्चन है एक से ज्यादा मेथड की कॉम्बिनेशन से बनते हैं. तो आज की क्लास में वही देख रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा मेथड की कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 16 और 15 क्लियर है आपको. फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं. क्वेश्चन नंबर इन द सेम मैनर क्वेश्चन नंबर 20 आई एम टेकिंग, राइट. सेलेक्टेड है जिसमें आपको डाउट्स आ सकते हैं. पहले से वो डाउट्स मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ. Question number 20. Now you can
see the question number 20. Right. So what is that in the NCERT? Integral of 1 upon x into x to the power of 4 minus 1 dx. Right. So if you see this question, अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहोगे बहुत लंबा जाएगा. कैसे? इसको आप चाहे तो फैक्टराइज कर सकते हो, या आप बोलोगे सर ये पावर 4 है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो न्यूमरेटर में हमें क्यूबिक लेना पड़ेगा, एंड इट इज गोइंग टू बिकम अ वेरी डिफिकल्ट सम अगर आप डायरेक्ट करोगे तो. राइट. या मैं दो तरीके बता दूंगा, विच एवर इज इजी यू कैन फॉलो दैट. dx अपॉन x इंटू, इसको तो ऑलरेडी हमने फैक्टराइज कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, जस्ट आज की क्लास में स्टार्टिंग में हमने फैक्टराइज कर चुके. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 करके. सो अगर आप इसको फैक्टराइज करके फिर आप जाओगे पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक में, यू कैन जस्ट सी दिस इज अ लीनियर फैक्टर, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर, लीनियर एंड लीनियर, इन अ टोटल 4 फ्रैक्शंस में स्प्लिट होगा. और इसको अगर हम लोग स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से वो सेपरेट होगा, a by x plus, since it's a quadratic you need to introduce a linear one, so dx upon x square plus 1 plus d upon x plus 1 plus e upon x minus 1. Just a minute now. विराट, थोड़ा आवाज कम कर दो ना प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है. चलिए. So see, you can see here, if I go with the general technique, general factorization, how many variables are introduced here? 3, 4 and 5. This is one way to apply the partial fraction. The second way I'm talking about, this is a one way. The second way to apply the partial fraction is like a by x. I'm directly doing that one. Matlab this is linear and this is biquadratic factor, right? So since it's the first one is linear, I can take a by x, and the second factor is biquadratic, that is degree 4. So I need to introduce the cubic one in the numerator. So this is simple logic. So it should be like bx cube plus cx square plus dx plus e, in this way. So again, it also gives 5 variable to solve. So these two are okay, but very lengthy in process, because 5 variable को solve करना बहुत time consuming process होता है. So how can we do the same sum in smart way? See, if I am using again this substitution method, अगर मैं substitution method use करूं तो ये कितना छोटा होगा देखिए आप. Let x to the power of 4 minus 1 is equal to t ले लेते हैं. Its derivative is 4x cube into dx by dt is equal to 1. So dx value will be what? यहां से dx value read कर सकते हैं, dt upon 4x cube हो जाएगा. So I'm going to change in the question dx और इसको change करते जा रहा हूं. So I is equal to 1 upon x into t into dx की वैल्यू हो रहा है dt upon 4x cube. So I can keep 1 by 4 as a constant outside the derivative. It remaining will be dt upon x power 4 into t. Now this x power 4 can written as t plus 1 from the first step जहां से हमने assume किया. So ultimately the question converted into dt upon, just check क्या बन रहा है, t plus 1 into t. So both the factors are converted into linear. Now if you go over the what we called as partial fraction, then only 2 factors are there, only
it going to split into two fractions, a by t plus 1, b by t. Is it simple or not? The third way. Yes, sir. So just use this method, which is again the combination of what we call substitution method plus partial fraction method. सर मान लीजिए मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया, अगर कोई मुझसे पूछेगा सर अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, तो क्वाड्रेटिक बनेगा तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन कैन आई गो विथ द 1 बाय क्वाड्रेटिक टेक्निक जो हमने 7.4 में प्रैक्टिस किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करके, राइट, कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करके आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला. यस, यू कैन डेफिनेटली go for that. So choice is yours whether you want to apply the partial fraction or you want to go for the 1 by quadratic concept. सर दोनों के आंसर अलग आएंगे क्या? दोनों के आंसर सेम ही आएगा, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट. द ओनली व्हाट, अगर आपको दोनों की आंसर सेम करनी होगी तो यू नीड टू एडजस्ट, यू नीड टू सिंप्लीफाई मोर कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज करके आप दोनों आंसर्स को सेम प्रूफ कर सकते हो. इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा वर्कआउट करनी पड़ती है, बट हमें उसके रिक्वायरमेंट नहीं हाँ है. सर. हाँ ठीक है, जब टेक्निक्स सर, बदलते हो तो आंसर्स वेरी करेंगे. सर ये वाला मेथड करेंगे तो आई थिंक एंडिंग में लॉग में बिल्कुल, convert ये भी करना. लॉग हो जाएगा, ये भी लॉग हो जाएगा, ये भी लॉग हो जाएगा. ठीक है, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ऑफ ए भी हो जाएगा ये वाला. ए प्लस लॉग बी, या हाँ, log a प्लस log b log a into b हो जाएगा बाद में. ठीक है, वो तो एंड में आंसर है, बट इसका अगर हम क्वाड्रेटिक में यूज करोगे तो 1 बाई, वो डिपेंड करता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है. देयर आर 6 फॉर्मूलेस वी हैव. अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी आंसर किस फॉर्म में होगा. सो सी, इट इज अ क्वेश्चन वेयर द स्टूडेंट कैन गो इन मल्टीपल वेज. अब उसके पास कितने कितने चॉइसेस है, आप जस्ट इमेजिन अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में होता तो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग एंगल से प्रैक्टिस किया होगा. सो जब हमारे पास ऐसे पेपर आते हैं तो देयर आर सी, कोई बच्चा ऐसा कर रहा होगा, कोई बच्चा ऐसा कर रहा होगा, कोई बच्चा ऐसा किया होगा स्मार्ट वे में. ये सब करने के बाद यहाँ आते ही फिर वो यहाँ से अपने रूट चेंज कर दिया कि इधर चला गया, कोई बच्चा बोलता है ऐसा करके. मीन्स दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन 5 डिफरेंट वेज. जब 5 तरीके से करोगे तो 5 अलग अलग इसका एक्सप्रेशन के आंसर्स होते हैं, बट ऑल आर गिविंग दी सेम आंसर्स, बट उसके लिए आपको ज्यादा वर्कआउट करके कन्वर्ट करना पड़ता है. बट नो नीड टू वरी, जिस मेथड से जो आंसर आता है उसको वहीं छोड़ दीजिए. ओके, दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व. गेटिंग? सो विच मेथड इज फिजिबल? सब्स्टिट्यूशन टेक्निक यूज करके पार्शियल फ्रैक्शन में जाना बेटर है कि वे 1 वे 2 इज बेटर? सब्स्टिट्यूशन वाला. Just go for that then. Okay. ठीक है. So if you understood, so I'm not solving the remaining part. I'm just leaving the remaining part for you to continue. Right? I'm just giving the only the hint where you required some support. कि चलो ये टेक्निक से हम करेंगे तो easy होगा. Only that thing I'm discussing in the class. Fine. So shall we go for the next question to get the answer? चलो थोड़ा hint हम देख लेते हैं. Question number 21 देख लेते हैं. ठीक है. सर बोलो. सर अगर ये 20th क्वेश्चन में कहीं पे रूट होगा तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं? 20 की 21? 20th में 20 तो नहीं. इसी क्वेश्चन में बोल रहे हैं आप रूट होगा तो? हाँ सर, इसी क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर पूरा रूट में होता तो नहीं होगा. डिनोमिनेटर में रूट होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक अप्लाई ही नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन में. अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट है तो देन यू हैव टू यूज द अनदर मेथड जो 7.4 में हमने पढ़ा था. 1 बाई क्वाड्रेटिक में 1 बाई अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई अंडर रूट क्वाड्रेटिक,
वो टेक्निक अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, जब आप क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हो तो देर आर डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। एक मेथड यूनिवर्सल नहीं होता है, हर मेथड का अपना एक खुद का डोमेन है, उसी डोमेन के अंदर वो वर्कआउट होता है। None of the technique is universal. Right? तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अगेन आई एम गोइंग टू गिव सजेशन हिंट कि कैसे करना है, मैं आपको हिंट देता हूँ, एंड बेस्ट यू कैन गो फॉर। देखने में बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, बट जस्ट लुक एट, देखिए क्या उसमें आपको लर्निंग पॉइंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21, what we have here, I is equal to integral of 1 upon e power x minus 1 dx। सो देखने में बड़ा सिंपल है, राइट। सो अगर आप कोशिश करोगे तो देयर वोंट बी अ डायरेक्ट फॉर्मूला, ये तो कोई डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला टू राइट द आंसर। सो डायरेक्ट मेथड तो काम ही नहीं करेगा। देन वी हैव सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। तो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का मेन पर्पस होता है कि या तो वो उस जिस फंक्शन को हम टी लेट करते हैं, जिस भी पार्ट को टी लेट करते हैं, या तो वो पार्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट में कन्वर्ट होना चाहिए, या उस टी पार्ट का क्या होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव अवेलेबल होना चाहिए। ये दो पर्पस होगा तो ही हम सब्स्टिट्यूशन टेक्निक यूज करते हैं। बट यहाँ ऐसा कुछ इसका डेरिवेटिव अवेलेबल ही नहीं है, तो समझ नहीं आता है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक यूज करे कि नहीं करे। और हम लोग देख रहे थे जैसे कि 6 फॉर्मूलास हमने देखा, बट ये भी कोई फॉर्मूला में डायरेक्ट फिट नहीं हो रहा। पार्शियल फ्रैक्शन की सोचेंगे तो पहले तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक यूज नहीं होगा। पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक ओनली वर्क होता है अलजेब्रा में, वो भी अलजेब्रा में अप्लाई होता है। अगर वो ट्रिग्नोमेट्री है ट्रिग्नोमेट्री है, लॉगरिथमिक है, exponential है, तो you need to convert them into algebra by with the help of substitution technique. So this is always advisable where the question is not in the standard form, not in the what we call a guessing form, then the only option left with us, that is substitution technique. So ये substitution technique को randomly भी कभी apply करके देखिएगा, you will see the change in the question. तो रैंडमली आई एम टेकिंग लाइक ये पूरा फंक्शन को टी लेट कर सकता हूँ, या ओनली मैं ई पावर एक्स को टी लेट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन। तो मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिमूव करना चाह रहा हूँ इस फैक्टर से, इस क्वेश्चन से, तो हाउ कैन आई रिमूव दिस वन? या आप बेटर है कि मैं चाहता हूं कि आप ई पावर एक्स माइनस 1 को टी लेट करो, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 ओनली, तो वो भी चलेगा, अदरवाइज लेट इट बी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो ई पावर एक्स इज इक्वल टी ले लो, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होगा इनटू dx by dt, बिकॉज वी आर डूइंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। यहां से dx की वैल्यू आ रहा है dt अपॉन ई पावर एक्स, करेक्ट। तो बाय डूइंग अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो dx की वैल्यू है dt अपॉन ई पावर एक्स। Now change dx and e power x accordingly. You will see the change in the question. dt, sorry, okay, dt ये हो गया t minus 1. So dx की वैल्यू dt upon e power x है ना, तो 1 by e power x भी है। Now can we change e power x again in terms of t? कर सकते हैं, e power x को हम terms of t में एक्सप्रेस कर सकते हैं। You can see the change. देखिए e power x को हम t में चेंज कर रहे हैं तो what it is going to become, t minus 1 into t. You will see both are linear factors. Then you can go for partial fraction technique from here. So it would be split as a by t minus 1 plus b by t, and solve for a and b and go for integration to get the answers. Will it work? समझ आ गया? इसमें just
again the substitution technique will work. अगर ये क्लियर है तो shall we go for the last question from my side? आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं. Shall we? Yes, sir. चलो. Just take this hint and then continue at home. बाकी पार्ट आप लोग खुद करेंगे, समझदार है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, अगेन हिंट दे रहा हूं इसमें. ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, इसलिए मैं सबसे लास्ट में रखा इस क्वेश्चन को डिस्कशन के अंदर. या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. ये इसको आप 5 स्टार लगा के प्रैक्टिस करिएगा. ऐसी क्वेश्चंस तो आप अगर लग गया ना एग्जाम में तो बहुत घुमा देते हैं और बहुत टाइम वेस्ट भी होता है. चलिए, क्वेश्चन इज आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4. Denominator is completely factorizable. If you observe the degree of the numerator and denominator, they both are same. So hence it is what? First of all, it's a improper fraction. Improper fraction. So first of all, to apply the partial fraction technique, we need to convert them into a proper fraction. Again, we required what? Long division method for this question. आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इस क्वेश्चन में आप पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं. सो हाउ कैन आई डू? सिंपल जो डिवीजन होता है वो प्रोसेस से आप करिएगा. सो हियर डिनोमिनेटर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर मल्टीप्लाइंग, you will be getting a polynomial like x power 4 7x square plus 12, और न्यूमरेटर पार्ट होगा x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2. ओके, मैंने मल्टीप्लाई किया बिकॉज आई नीड अ लॉन्ग डिवीजन मेथड. So if I do the long division method, one time it will go 7 power 4 7x square plus 12, and the remainder would be this to get cancelled, minus 4x square minus 10. So this is the remainder, this is a quotient, and this is the divisor. So now I can express this fraction as, इस तरीके से मैं express कर सकता हूँ. How? As a mixed fraction, quotient plus remainder upon division. तो इस तरीके से split होगा. तो quotient हो गया 1 into dx plus रिमाइंडर हो गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10 अपॉन डिविजर. डिविजर हो गया यही वापस, इसको हम वापस फैक्टराइज फॉर्म में लिख देंगे ताकि टाइम सेव होगा. सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx. क्लियर? तो अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम I1 या ए वाला I1 ले लो, चाहे तो आप इसको I1 बोलो या इसको I2 बोल दो. I1 का तो इंटीग्रेशन x है तो ये सॉल्व हो गया डायरेक्ट. अब I2 में आप लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक. अब इसमें आप देखेंगे बोथ फैक्टर्स आर क्वाड्रेटिक इन नेचर. सो पार्शियल फ्रैक्शन जब लगाओगे तो कैसे स्प्लिट होगा? ये linear upon quadratic, यानी ax plus b upon first factor, right? And the next would be linear, that is cx plus d upon x square plus 4. क्लियर हो गया फर्स्ट? ये एक तरीका समझ आ गया? हाँ सर. अगर ये क्लियर है, अब मैं इसका एक शॉर्ट वे बता रहा हूं. ये तो एक जनरली हर बच्चा करता है कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर में लाने के लिए लॉन्ग डिवीजन करेगा, फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेगा, तो अल्टीमेटली I1 I2 बनता है. I1 हमेशा सॉल्व होता है, I2 में लगाएगा पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक. दिस इज अ सिंपल वन.
But if we are using a small change in the question, right, the entire process will reduce the length. अब वो लेंथ कैसे रिड्यूस हो सकता है वो देखिए आप. Yes. यहां से मैं एरेज कर रहा हूं फर्स्ट ये जो सॉल्यूशन पार्ट है. या नाउ आई रिपीट जो हमारा क्वेश्चन है एज इट इज दोबारा लिखता हूँ, थोड़ा सा रफ हो गया इधर से. एक्स स्क्वायर प्लस 1. फर्स्ट टेक दिस फंक्शन आउट. इंटीग्रल को छोड़ो, इस फंक्शन को बाहर ले लो. जस्ट फॉर टाइम बीइंग let x square is equal to some y. Replace this with y. I'm not doing any differentiation to change dx because I'm not dealing with integral. I have taken this function out. एक जनरल फंक्शन है जिसको मैं एक्स स्क्वायर को y एज्यूम करूंगा. तो क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो रहा देखिए. y plus 1 into y plus 2 upon y plus 3 into y plus 4. ये सिर्फ हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, हम एक क्वेश्चन को सिंपल मॉडिफाई कर रहे हैं विदाउट एनी इंटीग्रल प्रोसेस. तो हम ऐसा जस्ट फॉर टाइम बिंग मैं ले लिया. एंड देयर आफ्टर व्हाट आई कैन डू हियर, आई कैन गो विद द लॉन्ग डिवीजन मेथड. अब यहां से मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन होगा. y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 और न्यूमरेटर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2. वन टाइम इट विल गो. सो y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 यानी जो हमारा पार्ट है माइनस व्हाट वी कॉल्ड एज माइनस 4y एंड माइनस 10. सो ये हो गया आपका कोशेंट, ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया आपका डिवीजन. So I wanted to convert into a proper fraction. So it would be like 1 plus minus minus 4y minus 10 as a remainder upon divisor. Divisor would be y plus 3 into y plus 4. So still I have not touched the any integration process. Okay, it's simple process. Now for this part I can go with partial fraction technique. इसको पहले मैं partial fraction technique से जाऊंगा. You could see here both the factors are linear, so I can express this fraction as further a by y plus 3 b upon y plus 4. तो पूरा क्वेश्चन पहले मैं y में ही सॉल्व करूंगा. तो आई विल सॉल्व फॉर a एंड b बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक. तो इस पूरी फ्रैक्शन कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा. एंड व्हाट वी हैव एन एडिशनल 1. आर यू गेटिंग मी फर्स्ट? तो पूरा जो क्वेश्चन है y की लैंग्वेज में मैंने स्टार्ट किया और y की लैंग्वेज तक लेकर आया. इसमें कहीं भी इंटीग्रल इन्वॉल्व नहीं है. अब मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूँ. यस बोलो सर. ये -4y -10 उसका क्या हुआ? अरे पार्शियल फ्रैक्शन में आप जब कन्वर्ट करोगे तो वो पूरा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं होगा. नहीं, लेकिन न्यूमरेटर का क्या हुआ? अरे वो एडजस्ट हो जाएगा ना. ये कॉन्स्टेंट्स आप लोग सॉल्व करोगे ना. पहले मैं टेक्निक पूरा नहीं बताया कि ए और बी सॉल्व करने का. एलसीएम लेके आप कट करोगे, एक्स की वैल्यू वाई वैल्यू पुट करके ए और बी की वैल्यू सॉल्व करोगे ना. आप ए और बी की वैल्यू सॉल्व करोगे तो वो ये वाला फैक्टर एडजस्ट हो जाएगा. इस फ्रैक्शन को हम 2 फ्रैक्शन में स्प्लिट किया ना. ठीक है, आगे बढ़े. नाउ द इंटीग्रल ऑफ, अब ये क्वेश्चन ले रहे हैं इंटीग्रल ऑफ द सेम फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ दिस 2 फंक्शन. जब आप इंटीग्रेशन ले रहे हो वापस y को किससे रिप्लेस कर दो,
एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, तो y की जगह पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो a सिंस इट्स अ कांस्टेंट कीप आउटसाइड, b ऑल्सो कांस्टेंट कीप आउटसाइड। तो आप देखिए 1/x² + 3 फॉर्म में आया लेट अस से, और 1/y² + 4। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला में कन्वर्ट नहीं हुआ, देखिए 7.4 एक्सरसाइज का फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, और ये हाँ हो गया सर। स्क्वायर प्लस 2², ये भी फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट। तो यहाँ आपका 7.4 का जो फॉर्मूला से वो कन्वर्ट हो गया इसमें। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, पहले हम लोग जो जनरल टेक्निक से कर रहे थे वहां क्या बन रहा था, ये डायरेक्ट लेने पर है ना, ये चेंज अगर हम नहीं करते तो ये दोनों फैक्टर क्या था, क्वाड्रेटिक था। इससे हमको कैसे स्प्लिट करना पड़ा था पार्शियल फ्रैक्शन में, इस तरीके से ax + b/x² + 3, फिर हमें लेना पड़ा cx + d/x² + 4, एंड वी आर सॉल्विंग फॉर 4 वेरिएबल। तो 4 वेरिएबल सॉल्व करने से अच्छा तो हम 2 ही वेरिएबल सॉल्व करना इजी होगा और टाइम सेव भी करेगा। सो दिस इज द पर्पस टू मॉडिफाई द क्वेश्चन लाइक दिस। ये कभी कभी रेयरली ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन सेट होते हैं। तो दिस टेक्निक यू मे ऑल्सो सी they have used this technique in example number 14. Just I am giving you the reference कि ये टेक्निक जो है एग्जाम्पल नंबर 14 में भी यूज किया हुआ है, जिससे उनका सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट हुआ और टाइम भी सेव हुआ। बाई क्वाड्रेटिक से सीधा क्वाड्रेटिक में आ गया, क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करने से लीनियर हो गया, दैट्स ऑल, राइट। सो अगर रिमेनिंग पार्ट आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सो फ्रॉम हियर आई कुड से from my end the exercise 7.5 is over. If you solve the exercise, if you are facing any problem or if you are facing any difficulties in the simplification part, you can share in the next class. So आज आप लोगों का टारगेट है कि 7.5 कंप्लीट करें and wait for the next video lecture, that is integration by parts. ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक वीडियो लेक्चर होगा, इवनिंग आपको वापस वही 7:30 8 o'clock अराउंड मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको लास्ट ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैंने वीडियो लेक्चर कल जो मैंने सेंड किया है वो फिजिबल है कि या मैं बोर्ड पे मतलब रिकॉर्ड करूं कि डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्ड करूं, विच इज द बेस्ट वन? सर ये डिजिटल बोर्ड वाला पाया। अच्छा, डिजिटल हाँ बोर्ड सर। मतलब ज्यादा क्लियर अपीयरेंस है, वॉइस क्लैरिटी है, एंड देयर इज नो लाइट फोकस ऑन द बोर्ड, कुछ भी नहीं, आई थिंक। हाँ सर। सो यस, हाँ। हाउ मेनी यू आर अग्री कि चलो सर आप डिजिटल बोर्ड के थ्रू ही रिकॉर्ड करके हमें भेजो क्लास इंस्टेड ऑफ द मार्कर बोर्ड? मी Sir, या Harshi is there, Tanay is there, yes they are saying yes sir, it will sir, be. me, हाँ, Vinayak yeah, is also. Vinayak also say yes, good, ठीक है। और कोई? आयुषी said yes। यस, वेरी गुड, ओके। सो बहुत अच्छा, फिर तो अगर ऐसा है तो फिर मैं, है ना, तो आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, मैं जो भी यहाँ व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस कर रहा हूँ ये तो ऑटोमेटिकली हमारा रिकॉर्ड हो ही रहा है और वो आपको मेल पे मिल रहा है, इट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज जो भी यहाँ राइटिंग पार्ट डिस्कस हो रहा है वर्चुअल क्लास के अंदर, तो मैं इसको गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर रहा हूँ। अभी ऑब्जर्व इट और नॉट आई डोंट नो, बट मैंने इसको हाँ गूगल सर क्लास, है ना, मिला ना आप लोग गूगल क्लासरूम में? हाँ, तो ये भी एक्सेसिबल है, अगर किसी का बाय चांस क्लास मिस भी होता है तो दे कैन एक्सेस द सेम वर्चुअल क्लास इन द गूगल क्लासरूम इटसेल्फ। तो ये भी एक बेनिफिट ही हो गया आप लोगों के लिए, है ना। तो जस्ट यू कैन यूटिलाइज, सी कितने सारे ऑप्शन है कि आप इस क्लास को दोबारा आप ज्वाइन कर सकते हो या दोबारा देख सकते हो। देर आर 3 ways, अदर वन इज द मेल, अब वो ऑटोमेटिकली आपके शायद ड्राइव पे भी हो जाएगा। सेकंड इज द गूगल क्लासरूम, एंड थर्ड इज व्हाट द रिकॉर्डिंग आई एम सेंडिंग लिंक ऑन यूट्यूब, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल हो रहा है। सो यू आर नाउ
equip with 3 things at a time. आप किसी भी तरीके से उसको एक्सेस करके देख सकते हो बना. Only the part remaining is your interest and passion. Okay, so thank you all of you and take care. Bye bye, see you. We'll meet in the next class. Bye, sir. Bye, Betty.